In this particular video section, we are going to discuss about the secondary growth in case of dicot stem. First of all, we should know what is a secondary growth. So we already know that in case of plant की जो height है वो पूरे उसके लाइफ स्पैन में उसकी पूरी लाइफ टाइम में बढ़ती रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शूट अपाइकल एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम. वी ऑलरेडी नो दैट. बट अगर उसकी हाइट बढ़ती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्लांट नीचे की ओर गिर जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लॉजिंग. इसको मैं लॉजिंग बोलता हूँ, जो कि मोनोकॉट के केस में हो जाता है क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ इज द इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन girth of a plant, increase in girth. This is called as इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ प्लांट. बट अगर एक प्लांट खाली लंबा होता रहेगा तो वो प्लांट कभी ना कभी आगे जाकर गिर जाएगा. तो नेचर ने क्या करा, डायकॉट्स के पास में और जिम्नोस्पर्म के पास में भी एक स्पेशल टाइप की ग्रोथ दी है जिसको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी ग्रोथ. उस सेकेंडरी ग्रोथ में एक प्लांट की मोटाई भी बढ़ती है, दैट इज गर्थ भी इंक्रीज होती है. दैट वी विल सी लेटर कि हाउ ये होता कैसे एग्जैक्टली. तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली मीन्स इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट. तो प्लांट की जो गर्थ होती है वो उसके लेटर स्टेजेस में होती है और जो प्लांट की हाइट होती है वो उसके इनिशियल स्टेजेस पर होती है. ओके, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट स्टेम. ये एक डाइकॉट स्टेम का डायग्राम है जिसके अंदर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मल हेयर्स एंड ट्राइकोम्स भी दिख रहे हैं. ये जो पार्ट है जो कि एंडोडर्मिस के अंदर है, दिस इज द एंडोडर्मिस. और ये जो एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज स्टील. This is known as stele. Stele includes pericycle, vascular bundle, xylem and phloem, and pith and medulla. And sometimes stele also includes the medullary rays. Medullary rays. Stele also includes the medullary rays. Okay. This is the longitudinal section of a dicot stem. But if we take a transverse section of a dicot stem, it will look like this. This is the transverse section of a dicot stem. We are seeing here the vascular bundles, xylem and phloem. The inner vascular bundle, this one is the xylem, and the outer one is the phloem. And the vascular bundles are arranged in a ring-like structure, in a ring-like structure, and this is the characteristic feature of a dicot stem. So if we look at the vascular bundles in case of dicot stem, so this is the vascular bundle of a dicot stem, and this is the vascular bundle of a monocot stem. The xylem is towards the inner side and phloem is towards the outer side in case of stem, or in case of leaves as well. But in case of dicots, the xylem and phloem is interrupted in between by a cambium. This is correctly known as intravascular cambium. Intravascular cambium. Intravascular cambium. Fascicles means bundle, xylem and phloem bundle, and this cambium is present in between the xylem and phloem. That is why it is known as intravascular cambium. So this type of vascular bundles which are present on the same radius, let us look at the diagram again. The vascular bundles are arranged in the same radius. This type of vascular bundles are known as conjoint vascular bundles, and this type of arrangement is known as conjoint collateral open type of vascular bundle. This arrangement is known as conjoint collateral open type of vascular bundle, which is the characteristic feature of dicot stem. And this type of vascular bundle is known as conjoint collateral and closed vascular bundle. This type of arrangement is seen in case of monocot stem. Okay, when the vascular bundles are open, then only then the secondary growth can be take place. But if the vascular bundles are of closed type, then the secondary growth cannot take place due to the absence of cambium. And cambium is not present in case of monocot, but cambium is present in case of dicots. And this type of cambium is known as intravascular cambium. Intravascular cambium खाली dicot stem के पास में होती है, and it is present in between the xylem and the phloem. Okay. This you are seeing again a transverse section of a dicot stem. This diagram you are again seeing a transverse section of a
dicot stem. In between you are seeing this red one is the xylem, and this blue one is the phloem, and in between xylem and phloem is the intravascular cambium. Now in between the two xylem, in between the two vascular bundle, there is present this region is the parenchymatous tissue, and it is known as medullary rays. Medullary rays are very helpful in the radial conduction of water. This For the radial conduction of water, medullary rays are very helpful. Okay, and this medullary rays are of nature of parenchymatous tissue. And remember, parenchymatous tissue दोबारा से अपनी डिवीजन करने कैपेबिलिटी को रीगेन कर सकते हैं. ओके, तो ये जो मेडुलरी रेज हैं ये दोबारा से अपनी रीगेन डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को फिर से अपनी रीगेन कर लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. अगर दोबारा से तुम किसी प्रॉपर्टी को दोबारा से रीगेन करते हो, डिवीजन की प्रॉपर्टी को रीगेन करते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर जो बीच में मेडुलरी रेज के, प्राइमरी मेडुलरी रेज के सेल्स होते हैं जो कि पैरेनकाइमेटस नेचर के हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन करते हैं और यहाँ पर एक और टाइप का कैम्बियम बनाते हैं विच इज़ नोन एज इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम. इंटर, इट इज़ बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, इट इज़ बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है इन दोनों के बीच में, which I am drawing in the red color. This is known as interfascicular cambium, and in green color it is known as intravascular cambium. So this one is interfascicular cambium, and in green it is known as intravascular cambium. Sooner or later it will form a complete ring, which are you seeing in this diagram. So it will form a complete ring. This is known as cambial ring. So a complete cambial ring is formed by the activity of intravascular cambium and intervascular cambium. Remember, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट थी, मगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लांट में बाद में बनी है. तो जो ये कैम्बियल रिंग है ये पार्शियली प्राइमरी इन ओरिजिन होती है एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है. ओके, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैम्बियल रिंग इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले से ही प्रेजेंट थी मगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाद में बनी है. तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है इसका ओरिजिन पहले से ही था, तो प्राइमरी, एंड इसका और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है इसका ओरिजिन सेकेंडरी है, मतलब ये बाद में बनी है. मोर ओवर, the intravascular cambium is produced by the process known as differentiation, and intervascular cambium is formed by the process known as dedifferentiation. Okay, let us move forward. Okay, अब जो ये जो कैम्बियल रिंग बनी है, ये कैम्बियल रिंग अब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को जन्म देगी, क्योंकि जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तभी एक प्लांट की गर्थ इंक्रीज होगी. ओके, तो जो ये कैम्बियल रिंग है अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है. अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ में ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है. रिमेंबर दैट कि ये जो कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी है अंदर की तरफ में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और बाहर की तरफ में इसकी एक्टिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड. तो ये सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनाएगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी फ्लोएम काफ़ी कम बनेगा और सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनेगा. ओके, नाउ you are seeing in this diagram that this is the cambial ring. This is the cambial ring. अब इस कैम्बियल रिंग ने अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाया है, जिस वजह से प्राइमरी फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ में पुश हो गया है. रिमेंबर कि ऐसा था ये वैस्कुलर बंडल, अंदर की तरफ जाइलम था, बाहर की तरफ में फ्लोएम था, और इन दोनों के बीच में कैम्बियल रिंग बन गई थी. ओके, इनके बीच में कैम्बियल रिंग बन गई थी पूरी की पूरी. अब जब ये कैम्बियल रिंग अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो ये वाला जो जाइलम है वो अंदर की ओर पुश हो जाएगा और ये वाला जो प्राइमरी फ्लोएम है ये बाहर की तरफ में पुश हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी जाइलम और यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम. ये तो है कैम्बियल रिंग, ये है कैम्बियल रिंग. अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम अंदर की तरफ पुश हो जाएगा. सी, प्राइमरी फ्लोएम इज पुश्ड टुवर्ड्स इनसाइड एंड दिस रीजन is the secondary xylem. This region is the secondary xylem. This region is the secondary xylem. This one is the secondary xylem, and this one is the secondary phloem. And see, primary phloem is pushed towards outward.
अब ये जो कैम्बल रिंग की एक्टिविटी होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि अंदर की तरफ ज़्यादा होती है और बाहर की तरफ इसकी एक्टिविटी कम होती है, तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, नाउ अब प्लांट की जो गर्थ है वो इंक्रीज हो गई है और जाइलम तो खाली अंदर की तरफ में है, जाइलम खाली अंदर की तरफ में है। इसका मतलब कि अगर प्लांट को इतने वाले एरिया में कंडक्शन करवाना है तो उसको एक और टाइप के स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा विच इज़ नोन एज सेकेंडरी मेडुलरी रेस, बिकॉज जाइलम खाली इतने एरिया में है, जाइलम इज ओनली प्रेजेंट इन दिस मच रीजन, but xylem is only present in this much region. But if plant has to conduct the water in the periphery region, for example in this region there is no xylem present in this region, so in in order to conduct the water, plant the cambial ring also formed another type of tissue which is known as secondary medullary rays, which are responsible for the radial conduction of water, ताकि जो बाहर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है उनको वाटर मिलता रहे, जिस वजह से सेकेंडरी मेडुलरी रेस का जन्म होता है और ये भी कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी से ही बनता है। लेटर ऑन वी फाइंड दैट कि सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से जो अंदर का जो रीजन है, अंदर वाला जो रीजन है वो सारा का सारा क्रश हो जाता है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वाला रीजन ऑटोमेटिकली क्रश हो जाता है, अंदर के प्राइमरी जाइलम और अंदर का पिथ वगैरह सब कुछ क्रश हो जाता है और वहीं पर ही जन्म लेती है हार्टवुड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम।